Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Behriya Model School, PNAD Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your science teacher. Hope you are fine and taking your online classes regularly. As we learn about pollution and its three kinds in our previous lecture. So before starting class, I have some questions regarding assessment of our previous topic. Here is some question displaying on your screen. I hope that all of you will give the right answer. And your question number 1 is, oil spillage in water is what kind of pollution? And your options are land pollution, water pollution and noise pollution. ऑयल स्पिलेज इन वाटर मीन्स पानी के अंदर जो ऑयल स्पिल हो जाता है, चाहे वो किसी भी ज़रिए हो, शिपिंग ऑयल हो या फिर फैक्ट्री वेस्ट के ज़रिए जो ऑयल होता है जैसे पानी में थ्रो कर दिया जाता है वो ऑयल हो, किसी भी तरह का ऑयल जो वाटर के अंदर स्पिल हो जाता है, इनके फैल जाता है, उससे कौन सा पोल्यूशन क्रिएट होगा या वो कौन से पोल्यूशन की वजह बनता है? लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन. Hope you will find the right answer, and the right answer is water pollution. Now let's move to question number 2. Question number 2 is, what caused the death of aquatic animals? वो कौन सा पोल्यूशन है जो एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ की वजह बनता है? एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी में पाए जाने वाले जानवर. अब ऑप्शंस हैं वाटर पोल्यूशन, air pollution, land pollution. And the right answer is water pollution. Hope you will find the उम्मीद है कि आप सबने सही जवाब दिया होगा. Now let's move to question number 3. And question number 3 is, which pollution is caused by burning of fossil fuels such as cars and aeroplanes? फॉसिल फ्यूल्स यानी कि आपके जो ईंधन हैं जैसे कि जिसमें पेट्रोल, गैसेस, कोल वगैरह शामिल हैं, इन तमाम के जलने से, जैसे कि आप कार्स वगैरह में जैसे यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह में आप डीजल, पेट्रोल, गैस कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल, जब उनके वो बर्न होती हैं तो उससे कौन सा पोल्यूशन क्रिएट होगा? एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन. उम्मीद है कि आप सब ने सही जवाब दिया होगा. एंड द राइट आंसर इज़ एयर पोल्यूशन. फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, चाहे वो किसी भी तरह से यूज़ हो रहे हों, कहीं भी इस्तेमाल हो रहे हों, उनके इस्तेमाल होने पर जो स्मोक रिलीज़ होता है वो एयर पोल्यूशन का बायस बनता है. तो राइट आंसर है एयर पोल्यूशन. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4. And question number 4 is, what pollution causes hearing loss? यानी कि आपकी जो कुव्वत समात है या आपकी सुनने की जो सलाहियत है. And your question number 4 is, what pollution causes hearing loss? Hearing loss की वजह कौन सा pollution बनता है? यानी कि आपकी कुव्वत समात का ख़त्म हो जाना या फिर सुनने से रिलेटेड अगर कोई. And your question number 4 is, what pollution causes hearing loss? वो कौन सा pollution है जो hearing loss का बायस बनता है? And your options are noise pollution, water pollution and air pollution. जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इस पोल्यूशन के बारे में, तो उम्मीद है कि आप सब ने सही जवाब दिया होगा. And the right answer is noise pollution. So, it's time to start our class and let's move to start today's lecture. Today we are going to learn about remaining two kinds of pollution. As you can see on your screen, there are 5 types of pollution, and the upper 3 are we already discussed in our previous class, such as land pollution, water pollution and noise pollution. इन तीनों pollutions को हम अपनी previous class में पढ़ चुके हैं. Now I am going to explain about the remaining 2, air and visual pollution.
आज की क्लास में हम जिन दो पोल्यूशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है एयर एंड विजुअल पोल्यूशन। इन दोनों पोल्यूशंस के कॉजेज, इफेक्ट्स और प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस किया जाएगा और इनका इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा। सो let's start our today's class with definition of air pollution. Air pollution is the introduction of harmful material into the atmosphere causing damage to living organisms and to the environment. हवा में किसी भी किस्म की हार्मफुल मटेरियल्स और गैसेस वगैरह शामिल हो जाएं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी इंसानों के साथ साथ जानवरों और पौधों के लिए भी नुकसान का बायस बने और जिससे हमारे माहौल पर बुरा असर पड़े, उसे फ़िज़ाई आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन कहते हैं। There are two types of air pollution: indoor air pollution and outdoor air pollution. Indoor pollution can be defined as any non-industrial indoor space where a person spend a period of an hour or more in any day. This can include the airspace in the office, classroom, motor vehicles, shopping center, hospital and home. इंडोर का मतलब अंदरूनी हिस्सा। इंडोर से मुराद आप अपने घर का अंदरूनी हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडोर वाइडर सेंस में यूज़ हुआ है। सो इंडोर एयर से मुराद ऐसी आलूदगी जो आपके घर में, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर वगैरह जैसी हर वो जगह जो बंद और एक बिल्डिंग की सूरत में हो, वहाँ की हवा में मौजूद ऐसे पार्टिकल्स और केमिकल गैसेस का मौजूद होना जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो, उसे इंडोर एयर पोल्यूशन कहा जाएगा। नाउ आउटडोर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ वन और मोर केमिकल इन द एटमॉस्फेयर in sufficient quantities and duration to cause harms to humans or other living organisms. आउटडोर एयर पोल्यूशन से मुराद हमारे माहौल में एक या उससे ज़्यादा केमिकल गैसेस का शामिल हो जाना आउटडोर एयर पोल्यूशन कहलाता है। यानी कि हवा में मौजूद ऐसे पार्टिकल्स जो किसी भी जानदार के लिए नुकसानदेह साबित हों, उसे आउटडोर एयर पोल्यूशन कहेंगे। आउटडोर एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन आप सेम वैसे भी ले सकते हैं जैसे हमने सिंपल एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन डिफ़ाइन की थी। But indoor air pollution is often worse. It can be up to 10 times worse for you than air outside. इंडोर एयर पोल्यूशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आउटडोर एयर पोल्यूशन से ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इंडोर से मुराद वो जगह और वो मकामात हैं जहाँ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जैसे कि आपके होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज जहाँ आप काम करते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपकी हवा पोल्यूटेड हो, आपकी एयर पोल्यूटेड हो, ऐसी जगह पर आप जब ज़्यादा देर सांस लेंगे तो डेफिनेटली वो आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी बनिस्बत आउटडोर एयर पोल्यूशन के, जहाँ पर आपका वक्त कम से कम गुजरता है। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। कॉजेज़ ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। द फर्स्ट वन कॉज इज़ इंडस्ट्रियल स्मोक, यानी कि आपकी इंडस्ट्री से खारिज होने वाला जो धुआं है, जो स्मोक है, वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। स्मोक रिलीज़ फ्रॉम व्हीकल्स, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरी इलाके हैं, जैसे कि कराची है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू और एयर पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी वजह है हैवी ट्रैफिक, व्हीकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल। तो इस व्हीकल्स के ज़रिए जो स्मोक रिलीज़ हो रहा होता है वो भी एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी कॉज है, सबसे बड़ी वजह है। नंबर 3 इज़ बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल किसी भी किस्म का हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस की सूरत में हो, सीएनजी हो, किसी भी किस्म का फ्यूल जो आप गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, उसके बर्न होने से जो स्मोक रिलीज़ होगा वो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। सो ये एक बहुत बड़ी वजह है। कोल फायर्ड इन इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल यूज़ किया जाता है, यानी कि कोयले को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सो इन दैट केस इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से भी जो स्मोक रिलीज़ होगा इस कोल को बर्न करने की सूरत में, वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनता है।
एंड द फिफ्थ वन इज़ बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड सो ऑन। बर्निंग ऑफ गार्बेज, जैसे कि हम अपने नॉर्मल रूटीन में अपने घर के इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे यहाँ जो डंप साइट्स मौजूद होती हैं, जैसे आम जबान में कचरा कुंडी वगैरह कहा जाता है, वहाँ पर भी गार्बेज को, जो रबिश जो हमारा नॉर्मल रूटीन में हम वहाँ थ्रो करते हैं, उसे बर्न किया जाता है, जिससे स्मोक रिलीज होता है और वो स्मोक भी एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। So now let's discuss the causes of indoor air pollution. And the first one is smoking tobacco. घरों में जो स्मोकिंग की जाती है, आपने देखा होगा कि उस स्मोकिंग से जो धुआं निकल रहा होता है उसमें आपको सांस लेने में और बहुत मुश्किल होती है और दुश्वारी महसूस होती है। इस तरह ये सबसे बड़ी वजह है इंडोर एयर पोल्यूशन की। नंबर 2 इज़ केमिकल फ्रॉम पेंट्स। घरों में करवाया जाने वाला जो पेंट है उसकी जो फ्यूम्स है, जो खुशबू आ रही होती है आपको, उसमें जो केमिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं वो आपकी हवा में मौजूद शामिल हो जाते हैं, जिससे इंडोर एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। एंड द थर्ड वन इज़ स्मोक रिलीज फ्रॉम जनरेटर्स। घरों में पाए जाने वाले जो जनरेटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मौजूदा दौर में तकरीबन हर घर में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर फ्यूल्स यूज़ होते हैं। फ्यूल चाहे पेट्रोल की सूरत में हो या फिर आपके गैस की सूरत में, दोनों ही सूरतों में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी फ्यूल की मदद से और आपके जनरेटर्स जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो डेफिनेटली वहाँ पर स्मोक रिलीज़ होगा और वो स्मोक जिस रिलीज़ होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसर की वजह बनता है। जब घरों में वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद ना हो और इनडोर ही कहीं पर जनरेटर को रख दिया जाए, तो ये जो स्मोक रिलीज़ होगा ये आपके घर में मौजूद हवा में शामिल हो जाएगा। इस तरह से ये इनडोर एयर पोल्यूशन की मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ी वजह है। Let's start the control techniques and preventive measures of air pollution. And the first one is uses of renewable resources. Renewable resources का इस्तेमाल करके एयर पोल्यूशन से बचा जा सकता है। अब renewable resources क्या हैं? जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। इस तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए तो इसके बहुत से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, जैसे कि आप चीप इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं, लोड शेडिंग से बचा जा सकता है, हर शख्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करेगा और इसकी सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा हमें ये होगा कि हम एयर पोल्यूशन से बच जाएंगे। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, कोल फायर इन इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स। कोल फायर यानी कि आपके जो कोयला है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ होता है जो एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। जब हम फ्यूल की तरफ ना जाकर, कोल और पेट्रोल की तरफ ना जाकर रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे तो इस तरह से हम एयर पोल्यूशन पर काबू पा सकते हैं। द सेकेंड प्रिवेंटिव मेजर इज़ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर एयर पोल्यूशन से बचा जा सकता है। पढ़ते आ रहे हैं और आप सबको पता होगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारी ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आप सबको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन से हमारी हवा साफ़ रहती है, आपको सांस लेने में मसला नहीं होता। और इसी तरह से हमारी एयर में मौजूद जितनी भी केमिकल गैसेस है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गैस शामिल होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो हवा है, जो हमारी फ़िज़ा है, वो साफ़ हो जाएगी, तो एयर पोल्यूशन खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी कंट्रोल टेक्निक है जिस पर अमल करके हम एयर पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं। द थर्ड प्रिवेंटिव मेजर इज़ क्रिएट अवेयरनेस। आगाही फैलाकर लोगों को अवेयर करके कि किस तरह से आप एयर पोल्यूशन पर काबू पा सकते हैं, लोगों के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करके इस एयर पोल्यूशन से बचा जा सकता है। फोर्थ वन इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन दोज व्हीकल्स दैट रिलीज एक्सेसिव स्मोक। ऐसी तमाम गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए जो कि ज़्यादा स्मोक रिलीज़ करती हैं, ताकि जब वो स्मोक रिलीज़ करने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लग जाएगी तो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन में भी कमी आएगी। लेस यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल्स, और मोटर व्हीकल्स का कम से कम इस्तेमाल करके, मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल इस तरह कम किया जा सकता है कि वो डिस्टेंस यानी कि वो वॉकिंग डिस्टेंस जिन पर आप पैदल चल के जा सकते हैं उनके लिए आप अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और एयर पोल्यूशन पर भी हम कंट्रोल
कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द विजुअल पोल्यूशन. Visual pollution is the presence of large objects on the landscapes. They may not physically harmful, but they can reduce the enjoyment of an environment. विजुअल पोल्यूशन से मुराद आपके एरिया, आपके इलाके, किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद वो तमाम चीज़ें हैं जो कि किसी भी जगह की खूबसूरती को, उस जगह के विजन को ख़राब कर दें, उसे विजुअल पोल्यूशन कहा जाता है. द मेन कॉजेज़ ऑफ विजुअल पोल्यूशंस आर power lines and poles, advertising, billboards, abandoned and dirty buildings. ये वो तमाम कॉजेज़ हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिज़िकली हार्म नहीं करते, बट उस जगह की खूबसूरती और इन्जॉयमेंट को ख़त्म कर देते हैं. लिहाजा ये वो कॉजेज़ हैं जो विजुअल पोल्यूशन का बायस बनते हैं. लेट्स मूव टू द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ विजुअल पोल्यूशन. The number one control technique is government should make some rules and charge fine to those who is unofficially used advertising billboards in street. गवर्नमेंट को ऐसे तमाम अफराद और इदारों पर फ़ाइन चार्ज करनी चाहिए और उनके लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए जो कि अनऑफिशियली एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं. And who destroy the beauty of area by writing advertising contents on wall. और ऐसे तमाम अफराद और इदारे जो कि एडवर्टाइजिंग कंटेंट्स को दीवारों पर लिखकर किसी भी जगह की खूबसूरती को तबाह करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे तमाम इदारों और अफराद पर भी पाबंदी आयद की जाए, उनके लिए रूल्स बनाए जाए और इन रूल्स पर अमल ना करने की सूरत में उन पर फ़ाइन चार्ज की जाए. ये थे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जिन पर अमल करके विजुअल पोल्यूशन पर काबू पाया जा सकता है. इन टुडेज़ क्लास वी डिस्कस अबाउट द एयर एंड विजुअल पोल्यूशन एंड देयर कॉजेज, इफेक्ट्स एंड द कंट्रोल टेक्निक्स. It's time for homework assignment, and your today's homework assignment is to complete the graphic organizer given on your handouts that is also displaying on your screen. It's time to wind up the class. Hope that you have understood the topic and the whole lecture. Inshallah, we will discuss our next topic in next video. Till then, complete your assignments. Take care of yourselves and your families. Stay home, stay safe. Assalamu alaikum.